Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the new topic, that is eating disorders, part first. Eating disorders, I will be covering the topic according to the DSM-10, and there are Anoxia Nervosa in that, and Bulimia Nervosa, and other categories of the eating disorders which I'll be covering. First is the Anorexia Nervosa. The Anorexia Nervosa, it is very highly, behavioral specific disease, and psychopathological symptoms are in this, and moreover there are the significant somatic signs, bodily symptoms are also included in the Anorexia Nervosa, and majority of the clients are females. Females are more affected by Anorexia Nervosa, and the onset is usually in the adolescence, and usually in the adolescence between the age of 13 to 19 years of the age. As compared to males, the females get affected more, and there is a core psychopathological feature. Both the psychology and the pathologies are involved in this, and major psychopathological feature is that the client is having the dread of fatness, उसको वेट फोबिया होगा, and drive of becoming more and more thinner and thinner. Now the clinical features, this eating disorder, that is Anorexia Nervosa, is characterized by various clinical features, like there is an intent of becoming obese. This fear उसको रहता ही रहता है, even if she decreases her body weight and becomes very thin and underweight, still she has the intense fear of becoming obese. She has the body image disturbance. In majority of the clients, we see that they perceive their body size inaccurately, जिसकी वजह से वो क्या इसको बोलते हैं, more and more weight loss करने की कोशिश करते हैं, and they have the body image disturbance. The next is there is a refusal to maintain the body weight above normal. अब अगर उनका minimum normal body weight आ जाएगा according to her sex, according to the sex of a client, gender के हिसाब से और height के हिसाब से जो उसका body weight होना चाहिए, वो अब वो maintain करना refuse कर देगी. She will still think that I'm more obese and I want to lose more weight, and there occurs a significant weight loss, about 25% of the original weight जो उसका होता है, तो वो more and more thinner बनने की कोशिश करने में 25% of the weight loss क्या इसको बोलते हैं हो जाता है उसको. And another clinical feature is that there is no medical illness in this Anorexia Nervosa, which is an eating disorder. There is no associated medical illness which can account for the weight loss. कभी कभी किसी बीमारी की वजह से weight loss होता है, लेकिन इसका ये clinical feature होना ज़रूरी है कि जब Anorexia client हो तो उसको हम तब diagnose करेंगे Anorexia Nervosa जब उसको कोई medical illness ऐसी ना हो जिसकी वजह से weight loss हो सकता है. The next is there is the absence of any other psychiatric disorder. कोई और psychiatric disorder भी इसके association में ना हो. And there is the most important clinical feature in the women's, that amenorrhea हो जाएगा, whether it is primary or it is secondary, and it is often more presently in the females. Now associated features means in addition to those typical clinical features, other associated features are often also present in the client, and the client may impose, वो खुद पे dietary restrictions डालने की कोशिश करेगा, pattern of handling food different होगा, like breaking the food into small pieces. छोटे छोटे जब वो खा रहा होगा, छोटे छोटे pieces में break करने की कोशिश करेगा फूड, क्यों, ताकि उसको ये साइकोलॉजिकल लगे कि मैं कम खा रहा हूँ, ठीक है, वैसा करने की. हाइडिंग द फूड,
छुपाने की कोशिश करेगा फूड। फॉर एग्जांपल व्हेन ही टेक्स द फूड डेफिनेटली, बट कुछ हद तक वो बोलेगा मैं ले लिया, फिर हाइड करने की कोशिश करेगा, या क्या इसको बोलते हैं बहुत ही विगरस एक्सरसाइजेस करेगा, सेल्फ विगरस एक्सरसाइजेस, ताकि उसका वेट लॉस हो जाए। नाउ दिस एनोरेक्सिया, अगर हम बात करेंगे, ये टर्म मिस नॉर्मल है, क्योंकि एज देयर हैज़ बीन नेवर डिक्रीज इन द एपेटाइट इनिशियली, मतलब कि उसको इनिशियली कोई एपेटाइट डिक्रीज नहीं होता है। इनफैक्ट पेशेंट या जो क्लाइंट होता है, इट इज़ ऑफन preoccupied with the food, and at lot of time may spend in collecting the recipes and cooking the food for the significant others. So this term, it actually is a misnomer, but there are different depressive symptoms very common in association with the anorexia nervosa, and कभी कभी उसको ये डिप्रेसिव सिम्टम्स होने के साथ साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी आते हैं। उसके साइकोमोटर एक्टिविटीज़ यूजुअली इंक्रीज रहते हैं, एंड इन सेवरल केसेस वेट लॉस की वजह से या इन सिम्टम्स की वजह से उसको एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, कि लेनिगो हेयर ऑल ओवर द बॉडी आ जाते हैं। एंड द वुमेन विच आर सफरिंग फ्रॉम दीज एनोरेक्सिया नर्वसा, दे यूजुअली हैव द पुअर सेक्सुअल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल्सो, एंड बिकॉज उनको ज़्यादातर प्रीऑक्यूपाइड रहते ऑफ कि वो प्रेगनेंट ना हो जाए, एंड दे मे गेन वेट, एंड एंड मेनी ऑफ द क्लाइंट्स जो फीमेल होंगी, जो जिनको एनोरेक्सिया नर्वसा होगा, दे आर अनकॉन्शियसली unable to maintain or accept their female role, वो भी हो सकता है इसमें। एंड what is called as, कभी कभी क्या होता है, a large number of the anoretics, मतलब वो ड्रग्स जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, have these bulimic episodes as well, वो ये कर सकते हैं। एंड मोर ओवर दीज सिम्टम्स समटाइम्स बिलमिक एपिसोड्स जब होंगे, तो वो बिंज कर सकते हैं इनटू द लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड रिलेटिवली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम ईटिंग बिंजेस भी बोलते हैं। And now coming to the treatment of this anorexia nervosa, बेसिकली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा डिफ्रेंशिएट हुआ होना चाहिए फ्रॉम द अदर कंडीशंस जो कॉज कर सकते हैं वेट लॉस। जैसे मैंने अभी बोला, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है जो वेट लॉस कर सकती है, जैसे कि मेडिकल इलनेसेस, हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, या हाइपोथैलेमिक लीजन्स होंगे लेटरल, या क्या कोई क्या इसको बोलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि डिप्रेसिव एपिसोड या स्किज़ोफ्रेनिया में वेट लॉस हो सकता है चांसेस। तो वो क्या उसको बोलते हैं, वो पहले देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर हम बात करेंगे इन बिंजेस की, जो मैंने अभी बात की थी कि वो बिंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लॉट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड लेते हैं एक साथ, लेकिन फिर वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग की वजह से, या लैक्सेटिव्स लेते हैं, या डाययूरेटिक अब्यूज़ करते हैं, तो फिर वो क्या इसको बोलते हैं, उसको वापस निकालते हैं, वोमिट आउट करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी दूसरी मेडिकल कंडीशंस जैसे हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अब अगर हमने पूरा डायग्नोस कर लिया कि इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, बेसिकली 2 फेजेस होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। एक तो होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जो हमें ये इंश्योर कराता है कि वेट गेन करेक्ट हो, और इसको करेक्शन हम दे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर इसको हुई होंगी वो करेक्ट करे। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम ये एम करते हैं कि हम मेंटेन करें इसका नॉर्मल वेट इन अ शॉर्ट ट्रीटमेंट पीरियड, और रिलैप्स
एब्सेस प्रिवेंट कर सके। उसके लिए हम डिफरेंट वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ देते हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम पॉजिटिव री देते हैं, एट अ टाइम इज़ नेगेटिव री भी देते हैं, ताकि they get congested to their weight gain by the by the client, and the positive reinforcement this हम provide करते हैं on the everyday basis. इतना भी ये नहीं है कि हम उसको पूरा दबाव रखेंगे कि rapid weight gain हो, but yes it should be at least large meals हम उसको देंगे, अच्छा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस देंगे फॉर ए टाइम बीइंग, क्या उसको बोलते हैं, ओकेजनली हम कभी कभी उसको राइल्स टू फीड भी देते हैं फोर्सिबली, ताकि वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ले सके एंड इन लॉन्ग रन उसका वेट गेन हो जाए नॉर्मल। दूसरा हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करते हैं। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में हम उसको इंडिविजुअली इस बात का एहसास दिलाते हैं, एंड वी टॉक टू हिम व्हाट आर द थिंग्स जो उसको परेशान कर रही है, एंड हर एक चीज़ को हम प्रायोरिटाइज़ करके वर्क ऑन करना स्टार्ट करते हैं। और उनके जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस आउट्स है जो वो फूड पे निकालता है, और बॉडी सेल्फ इमेजिंग है जिसका किसी और चीज़ के साथ कनेक्शन होता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करके हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी करते हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। और कभी कभी हमें तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करते हैं, बिकॉज ये क्या इसको बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन आ जाते हैं क्लाइंट, एडुकेट नर्सिंग केयर के लिए, फूड इनटेक के लिए, वेट गेन के लिए। तो फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। एंड ड्रग्स पे भी हम रख सकते हैं क्लाइंट को, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एडजॉइंट टू द अदर मोड्स ऑफ थेरेपी, लाइक क्लोरोप्रोमाज़िन, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, बिकॉज दे में हैविंग द डिप्रेसेंट सिम्टम्स इन दैट, जिसमें हम फ्लॉक्सिटीन दे सकते हैं, या साइप्रोहेप्टेडीन दे सकते हैं हम इसमें, जो हेल्पफुल है इन इंड्यूसिंग वेट एंड डिक्रीजिंग दीज डिप्रेसिव सिम्टम्स। और एपेटाइट भी इस वाले ड्रग से इंक्रीज होता है अगर एनोरेक्सिया एक्चुअल में प्रेजेंट होगा। एंड वी कैन गो फॉर द ग्रुप थेरेपी, वी कैन गो फॉर द फैमिली थेरेपी एज वेल, ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी। इसमें हम एजुकेट करते हैं क्लाइंट्स को एंड उसके फैमिली को अबाउट द एनोरेक्सिया नर्वोसा डिजीज़, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में एजुकेशन देते हैं, जिसमें हम ये एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से इट्स फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम शी शुड फॉलो द करंट नॉर्म्स ऑफ फिटनेस, एंड देयर कैन बी द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो ज़्यादा ही इस चीज़ को, इस वेट लॉस को मोर एंड मोर करने की कोशिश करेगी। एंड इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा पाया गया है। अगर इसका एज ऑनसेट यंगर है तो इसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा पाया जाता है, और क्या इसको बोलते हैं, देयर आर नो बिलिमिक एपिसोड्स भी नहीं हुए हैं ज़्यादातर। तो इसका इन वाली ट्रीटमेंट्स का इस वाली डिजीज़ के लिए प्रोग्नोसिस अच्छा खासा पाया गया है। That was all about this part of the video. I will come soon with the next rest of the these eating disorders soon, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.